क्या आपके DSSSB TGT 2024 में 70, 80, 85 ਜਾਂ 90 ਪਲੱਸ ਮਾਰਕਸ ਹੈ? क्या ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਟ ਆਫ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? क्या ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ DSSSB ਦੇ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਰਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਟ ਆਫ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਕਟ ਆਫ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨੰਬਰ ਰੇਂਜ ਕਲਸਟਰਸ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ, ਸੰਭਵ ਕਟ ਆਫ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੇ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ DSSSB TGT ਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ 2024 ਦਾ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। DSSSB TGT पंजाबी पोस्ट लिए साल 2024 में कुल 556 पद निकाले गए। यह भर्ती पोस्ट कोड 810/524 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ TGT ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ UR, OBC, SC, ST ਤੇ EWS ਲਈ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PWBD ਦੇ ਵੀ ਟੋਟਲ 22 ਪਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ VH 5, HH 6, OH 5 ਤੇ MD ਔਟਿਜ਼ਮ 6 ਪਦ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਵੇਦਨ 12 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀ 8 ਮਾਰਚ 2024। TGT ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 556 ਪਦਾਂ ਦਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਾਮਾਨਯ ਵਰਗ UR 404 पद, OBC 41 पद, SC 32 पद, ST 72 पद, EWS 7 पद ਤੇ ਕੁੱਲ 22 ਪਦ PWB ਦੇ ਵਰਗ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ UR ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 404 ਪਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਟਾਇਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਔਰ ਟੀਚਿੰਗ DSSSB ਦੁਆਰਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1082 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 228 शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों का विवरण कुछ इस प्रकार है। UR 441, मेल 124, फीमेल 317, OBC 10, मेल 00, फीमेल 10, SC 72, मेल 42, फीमेल 30, PWBD 5, मेल 3, फीमेल 2, EWS और ST 0। DSSSB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਭੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ OARS ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ www.dsssbonline.nic.in ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਭਿਅਰਥੀ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਪਰ ਆਪਣਾ ਈ-ਡੋਸੀਅਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ ਅਪਲੋਡਡ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ DSSSB ਨੇ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਊਨਤਮ ਯੋਗਤਾਂਕ ਕਟ ਆਫ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨੀ ਕਟ ਆਫਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 535 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲੀ ਈ-ਡੋਸੀਅਰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 228 शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों का विवरण कुछ इस प्रकार है। UR 441, मेल 124, फीमेल 317, OBC 10, मेल 00, फीमेल 10, SC 72, मेल 42, फीमेल 30, PWBD 5, मेल 3, फीमेल 2, EWS और ST 0। DSSSB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਭੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ OARS ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ www.dsssbonline.nic.in
ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਭਿਅਰਥੀ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਪਰ ਆਪਣਾ ਈ-ਡੋਸੀਅਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ ਅਪਲੋਡਡ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ DSSSB ਨੇ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਊਨਤਮ ਯੋਗਤਾਂਕ ਕਟ-ਆਫ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨੀ ਕਟ-ਆਫਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 535 कैंडिडेट्स ਨੂੰ प्रोविजनली ई-डॉसियर भरन ਲਈ इनवाइट किया गया है। सबसे ज्यादा चयन यूआर वर्ग से हुआ, 441 उम्मीदवार, जिनमें 124 पुरुष और 317 महिलाएं, यानी महिलाओं का सामान्य वर्ग में चयन सबसे अधिक रहा। ओबीसी श्रेणी से सभी 10 उम्मीदवार महिलाएं थीं, कोई पुरुष शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। एससी वर्ग से 72 उम्मीदवार, 42 पुरुष और 30 महिलाएं। ईडब्ल्यूएस और एसटी से कोई भी उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी में 5 उम्मीदवार चुने गए, 3 पुरुष और 2 महिलाएं। कुल 528 उम्मीदवारों में 169 पुरुष, 359 महिलाएं शामिल रहीं, यानी कुल चयन में भी महिलाओं का अनुपात ज्यादा रहा। DSSSB द्वारा टीजीटी पंजाबी भर्ती के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लिए पुरुषों और महिलाओं की कट ऑफ अलग अलग निर्धारित की गई है। यूआर सामान्य वर्ग में पुरुषों के लिए कट ऑफ 80.880 रही, जबकि महिलाओं के लिए यह थोड़ी कम 80.4 रही। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में पुरुषों की कट ऑफ NIL रही, यानी कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था, जबकि महिलाओं के लिए NA दर्ज किया गया है, जिसका अर्थ है कि इस वर्ग में कोई शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की गई। ओबीसी श्रेणी में पुरुषों के लिए कट ऑफ NIL रही, अर्थात कोई पुरुष उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, जबकि महिलाओं के लिए यह 70.111 निर्धारित की गई। एससी अनुसूचित जाति वर्ग में पुरुषों की कट ऑफ 76.82C और महिलाओं की 70.440 रही, जो कि प्रतिस्पर्धात्मक स्तर को दर्शाती है। एसटी अनुसूचित जनजाति वर्ग में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए NIL कट ऑफ रही, अर्थात कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। पीडब्ल्यूबीडी विकलांग श्रेणी में पुरुषों की कट ऑफ 65.9298 और 4.2 के बीच रही। इस आंकड़े से स्पष्ट होता है कि यूआर मेल वर्ग की कट ऑफ सबसे अधिक रही और ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस पुरुष वर्ग में कोई उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ पर द यूआर सामान्य वर्ग देसी 118 मेल ਤੇ 25 ਫੀਮੇਲ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 124 ਪੁਰਸ਼ ਤੇ 317 ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 441 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਈ-ਡੋਸੀਅਰ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ओबीसी कैटेगरी ਵਿੱਚ 30 ਮੇਲ ਤੇ 11 ਫੀਮੇਲ ਪਦ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਸਿਰਫ 10 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ईडब्ल्यूएस वर्ग ਵਿੱਚ 7 ਮੇਲ ਪਦ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। एससी कैटेगरी ਵਿੱਚ 19 ਮੇਲ ਤੇ 13 ਫੀਮੇਲ ਪਦ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋ ਗਏ 42 ਮੇਲ ਤੇ 30 ਫੀਮੇਲ, ਮਤਲਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। एसटी वर्ग ਵਿੱਚ 34 ਪੁਰਸ਼ ਤੇ 28 ਮਹਿਲਾ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 72 ਪਦ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੀਡਬਲਿਊ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 12 ਮੇਲ ਤੇ 10 ਫੀਮੇਲ ਪਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, पर शॉर्टलिस्ट सिर्फ 3 पुरुष ते 2 महिला, टोटल 5 कैंडिडेट्स ही हो पाए। आगे हम रैंक का पता करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करें। पीडीडी मेल कैटेगरी में कट ऑफ सिर्फ 65.98 65.11 रहा, मतलब कंपटीशन बहुत ही कम रहा इस कैटेगरी विच। 22 सीटें अवेलेबल थीं, पर शॉर्टलिस्ट हुए सिर्फ 5 कैंडिडेट्स, 3 मेल ते 2 फीमेल। इस कैटेगरी विच टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बहुत ही कम है। फाइनल सिलेक्शन दी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा ने ते कैंडिडेट्स गिने चुने ईडब्ल्यूएस वर्ग में 7 पद सभी पुरुषों के लिए आरक्षित थे, पर कोई भी उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट
नहीं हो सका। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं आया या जो भी आया कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाया। एक और पॉसिबिलिटी है कि ईडब्ल्यूएस वाले सभी कैंडिडेट्स यूआर और जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर गए, इसलिए ईडब्ल्यूएस कोटा खाली रह गए। टीजीटी पंजाबी विच एसटी कैटेगरी दी 72 वैकेंसीज सन, 30 मेल ते 30 फीमेल, बट नॉट इवन अ सिंगल कैंडिडेट गॉट शॉर्टलिस्टेड। क्या सोच सकते हो, इतनी सारी सीट्स पर एक भी योग्य उम्मीदवार नहीं। ईदर कोई एलिजिबल एप्लीकेंट आया ही नहीं, या फिर जो भी आया कट ऑफ तक पहुंच ही नहीं पाया, या विच एसटी कैटेगरी ऑलमोस्ट ब्लैंक चली गई डिस्पाइट डजन्स ऑफ वैकेंसीज। यानी मौका था पर कोई यूज ही नहीं कर पाया। एससी कैटेगरी में कुल 32 पद थे, जिनमें 19 पुरुषों और 13 महिलाओं के लिए रिक्तियां थीं। लेकिन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की संख्या 72 पहुंच गई, जिनमें 42 पुरुष और 30 महिलाएं शामिल हैं। कट ऑफ भी काफी हाई गई। पुरुषों के लिए 76 प्रश्नोवार 2, महिलाओं के लिए 75 प्रश्नोवार 7। यानी जितनी वैकेंसीज थीं उससे कहीं ज्यादा उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसका साफ मतलब है एससी कैटेगरी विच मुकाबला बहुत ही कड़ा रहने वाला है, क्योंकि अब फाइनल सिलेक्शन सिर्फ हाई मेरिट वालों को ही मिलेगा। ਐਸਸੀ ਮੇਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਸਕੋਰਰਸ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰੀ ਰੇਂਜ 79.20 80.04 ਵਿੱਚ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਨੇ, यानी ये सारे टॉप रैंक वाले स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स ने। इसके बाद 78.00 79.20 रेंज विच लगभग 8 कैंडिडेट्स अनुमानित ने। क्यूमुलेटिव टोटल हन 15 हो गया। 77.20 78.00 रेंज विच 9 कैंडिडेट हैं, जिससे टोटल पहुंच गया 24। 77.00 77.20 विच 10 होर विद्यार्थी आ रहे ने, जिससे काउंट वध के 34 हो गया। एंड में नैरो कट ऑफ बैंड 77.00 77.82 विच 8 कैंडिडेट्स ने, और इस तरह ग्रैंड टोटल हो गया 42 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। केस 1, कंपटीशन हाई प्लस लिस्ट क्लीन। अगर इन सारे 42 कैंडिडेट्स ने समय पे ई डॉसियर भर दिता ते सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड ने ते कोई एलिजिबिलिटी या टेक्निकल इशू नहीं आया, तो फिर फाइनल सिलेक्शन सिर्फ टॉप 19 रैंक वालों का ही होवेगा। मतलब प्योर मैरिट डिसाइसिव होवेगी ते रैंक 20 तो नीचे वाले कैंडिडेट्स की उम्मीद कम हो जाएगी। केस 2, कुछ टॉप रैंकर्स एब्सेंट या डिसक्वालीफाइड। अगर कुछ टॉप कैंडिडेट्स ई डॉसियर नहीं भर पाए या डॉक्यूमेंट्स गलत निकल आए या कहीं होर पहले ही सिलेक्ट हो चुके ने, तो फिर नीचे रैंक 20 तक वाले कैंडिडेट्स ਨੂੰ कंसीडर किया जा सकता है। इस केस विच लोअर मैरिट वालों ਲਈ उम्मीद बन सकती है। फाइनल सिलेक्शन एक्सट्रीमली टाइट मैरिट ਤੇ डिपेंड करेगा। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ 77.5 ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ 78.00 77.82 ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਟੌਪ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਬਸੈਂਟ ਜਾਂ डिसक्वालीफाइड निकलते हैं। एससी फीमेल कैटेगरी सिलेक्शन एनालिसिस, कुल 13 पद और 30 महिला उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए ने, यानी सिलेक्शन रेशियो लगभग 1 से 2.3 है। मुकाबला मध्यम है पर मेरिट काफी करीब है। अब देखें मार्क्स वाइज ब्रेकअप। 78.50 80.4 5 उम्मीदवार टॉप रैंकर्स, 787 से 758 तक 7 और क्यूमुलेटिव टोटल 1275.900 से 7, और अब टोटल हुआ 1975.47 से 75.90 11, और ग्रैंड टोटल 30 कैंडिडेट्स केस 1 लिस्ट क्लीन। अगर सारे 30 कैंडिडेट्स ने प्रॉपर ई डोसिए अपलोड कर दिया तो टॉप 13 रैंक होल्डर्स ही सिलेक्ट हो पाएंगे। मेरिट डिसाइसिव रहेगी। केस 2, कुछ टॉप रैंकर्स एब्सेंट जो कि डिस्क्वालीफाइड। अगर कुछ कैंडिडेट्स ई डोसिए सबमिट नहीं करते, डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं या वो ऑलरेडी कहीं और सिलेक्ट हो चुके हैं, तो रैंक 18-20 तक वाले कैंडिडेट्स को भी मौका मिल सकता है। मतलब जो कैंडिडेट बॉर्डरलाइन ते ने
वो भी उम्मीद रख सकते हैं। एससी फीमेल कैटेगरी विच कट ऑफ 75.47 रही, पर कई कैंडिडेट 77 से 77.53 रेंज विच क्लस्टर्ड ने फाइनल सिलेक्शन टाइट मेरिट ते डिपेंड करेगा। ओबीसी मेल कैटेगरी बिग कंसर्न, 30 खाली सीटें थीं, लेकिन एक भी पुरुष अभ्यर्थ शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया। मतलब ओबीसी पुरुष वाली सारी सीटें खाली रह सकती हैं, या फिर ये सीटें यूआर या किसी और योग्य श्रेणी में ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन अगर यूआर की फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाती है, तो कुछ ओबीसी मेल कैंडिडेट्स जो अभी यूआर में शॉर्टलिस्टेड है, वो अपनी कैटेगरी ओबीसी में शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसे में ओबीसी मेल कैटेगरी से भी सिलेक्शन पॉसिबल हो सकता है। अभी के हालात में तो ये सीटें वैकेंट ही दिख रही है, पर फाइनल मेरिट एंड शिफ्टिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। वीडियो लाइक एंड शेयर करो। ओबीसी फीमेल कैटेगरी सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म्ड। केस 1, वेरी हाई चांसेस ऑफ सिलेक्शन। 10 महिला उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुई है और 11 पद उपलब्ध है। मतलब जिन्होंने ई डोसिए समय पर अपलोड कर दिया, उनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। कट ऑफ 70.11 रही और उम्मीद है यही रहेगी। सो ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स आर इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन। केस 2, यूआर कट ऑफ राइजेस। अगर यूआर की कट ऑफ और ऊपर जाती है, तो कुछ ओबीसी महिला उम्मीदवार जो अभी यूआर में गिनती में आ रही है, वो वापस अपनी कैटेगरी ओबीसी में शिफ्ट हो सकती है। पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पद 11 है और सिर्फ 10 शॉर्टलिस्ट हुई है। एक सीट फिर भी बचती है, इसलिए ज्यादातर कैंडिडेट्स सेफ है। यस, बाउंड्री कैंडिडेट्स थोड़ा वल्नरेबल रह सकते हैं, जिनका स्कोर कट ऑफ के बिल्कुल पास है, पर ओवरऑल सिलेक्शन की उम्मीद स्ट्रांग है। आपकी काया राय एच कमेंट करो। यूआर मेल कैटेगरी गोल्डन चांस। सोचो जरा, 158 पद पर शॉर्टलिस्ट हुए सिर्फ 124 कैंडिडेट्स। 34 सीटें तो शुरू तो ही खाली ने। मतलब पोस्ट्स ज्यादा, कैंडिडेट्स काम, हाँ सीधा सिलेक्शन दरा। इन्ना साफ और रेयर मौका बार बार नहीं मिलता। जिनका नाम शॉर्टलिस्ट च है, स्पेशली नियर और अबव कट ऑफ 80.44, उनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म मान लो। एक लाइन में कहें, यू आर मेल विच 124 कैंडिडेट्स ले गोल्डन मौका बन चुका है, जिसने ई डोसिए ठीक से अपलोड कर दिया। समझो, पोस्टिंग पक्की। आपकी जनरल कैटेगरी में संभावित रैंक क्या हो सकती है? जल्दी कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको आपका अनुमानित स्थान, रैंक बताऊंगा। जल्दी कमेंट करो। जनरल कैटेगरी फीमेल ची तुहाड़ी प्रोबेबल रैंक की हो सकती है। क्या आप उन टॉपर्स में से हो जिनकी रैंक 245 में आने वाली है, या फिर कट ऑफ द बिल्कुल बॉर्डर लाइन तय खड़े हो? हर एक अंक तय करेगा तुहाड़ा फ्यूचर। अब सवाल ये नहीं कि शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं, सवाल ये है तुसी कितने ऊपर हो, रैंक कितनी स्ट्रांग है। जनरल कैटेगरी विच सिलेक्शन सिंपल नहीं, सैविज है। कंपटीशन तगड़ा है, पर अगर रैंक हाई है, ता सीट पक्की समझो। 317 female candidates have been shortlisted against 245 UR female vacancies. The selection ratio is about 1 to 1.29, meaning tight competition. Final cutoff may rise slightly, especially if many top scorers complete their e-dossier properly. 121 से ऊपर अंक पाने वाले सिर्फ 10 उम्मीदवार अनुमानित है। 131 प्लस मार्क्स वाले केवल 3 कैंडिडेट। 131 से ऊपर यानी रेयरेस्ट टॉप स्कोरर्स 126 से 130 रेंज 3 और क्यूमुलेटिव टोटल 6 आईएश वाइड टॉपर लिस्ट आज स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स ने 121 से 125 रेंज 3 और क्यूमुलेटिव टोटल 6-4 और क्यूमुलेटिव टोटल 10 गारंटीड टॉप 10 में हो सकते हैं और सिलेक्शन बहुत स्ट्रांगली एक्सपेक्टेड है। 100 से 1200 अंक लाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, अनुमानित विश्लेषण, मार्क्स रेंज 116 से 1200, लगभग 10 विद्यार्थी, टोटल क्यूमुलेटिव 20 तक पहुंच गया। यहां पर ज्यादातर टॉप स्कोरर्स शामिल है। मार्क्स रेंज 111 से 115,
लगभग 16 उम्मीदवार इस रेंज में है। अब कुल संख्या बढ़कर 36 हो गई। यहाँ के कैंडिडेट्स की पोजीशन भी काफी स्ट्रांग मानी जा सकती है। मार्क्स रेंज 106 से 110, करीब 22 छात्र इस रेंज में है। क्यूमुलेटिव टोटल नाउ 58। ये कैंडिडेट्स मिडिल अपर मेरिट जोन में माने जा सकते हैं। मार्क्स रेंज 101 से 105, इस रेंज में सबसे ज्यादा 37 विद्यार्थी आ रहे हैं। क्यूमुलेटिव योग अब बनता है 95। टोटल अनुमानित उम्मीदवार 100 से 120 मार्क्स, करीब 95 छात्र, जो कि ओवरऑल मेरिट लिस्ट का टॉप मेरिट ब्लॉक बनाते हैं। अगर आप इस रेंज 100 से 1200 में हैं, तो आपकी सिलेक्शन की संभावना स्ट्रांग है। तीर सोचिए, 96 कैंडिडेट्स इस रेंज में प्रोजेक्टेड है। मतलब ये कोई मामूली लड़ाई नहीं, ये है टॉप 150 घुसण दी असली रेस। 96 से 100 मार्क्स वाले ता सीधा मेरिट दे दरवाजे खड़े ने। इन द चांसेस बहुत स्ट्रांग ने। कट ऑफ चाहे कैटेगरी कोई भी हो, ये कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट सेफ जोन विच ने। 91 से 95 वाले कैंडिडेट्स दे लिए मुकाबला थोड़ा टफ जरूर है, पर रिमेंबर, कैटेगरी शिफ्टिंग, एब्सेंटीज्म ते टाई ब्रेकर सब खेल बदल सकते ने। 91 से 100 मार्क्स लाना कोई छोटी बात नहीं। ते जे तुहाड़ा स्कोर इस रेंज 6 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਘੁਸਣ ਵਾਲੀ ਰੇਸ। ਇਹ 96 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ टॉप 150 विच फिक्स ने। 88.4 से 90 अंक वालों का सिलेक्शन जोन विश्लेषण बताता है कि इस रेंज में भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। 86 से 90 मार्क्स वाले लगभग 49 उम्मीदवार है। ये सभी कट ऑफ 88.4 से काफी ऊपर है और फाइनल मेरिट के बेहद करीब माने जा रहे हैं। ये 49 उम्मीदवार ऑलमोस्ट सेफ जॉन एच ने, और इनमें से ज्यादातर का सिलेक्शन लगभग तय माना जा सकता है। वहीं 62 से 85 मार्क्स रेंज में करीब 35 उम्मीदवार है, जो कि बॉर्डरलाइन पर है। इनका सिलेक्शन तभी संभव है अगर ऊपर के कुछ टॉप रैंकर्स एब्सेंट हो, डिस्क्वालीफाई हो जाए या किसी और जगह सेलेक्ट हो चुके हो। यह बॉर्डरलाइन जो नच ने उम्मीद ता जरूर है, पर डिसीजन दुआओं ते लगते भी निर्भर करेगा। दूसरी ओर 80 से 82 मार्क्स रेंज में 42 उम्मीदवार है, जो कि कट ऑफ द बिल्कुल निचले सिरे ते ने। इन्हें फिलहाल मेरिट से बाहर माना जा रहा है और सिलेक्शन की संभावना बहुत ही कम या लगभग नगण्य है। ये जोन विच उम्मीद ऑलमोस्ट खत्म ही समझी जा रही है, पर मिरेकल हो जाए ता कहानी पलट भी सकती है। निष्कर्ष यही है कि 87 प्लस वाले कॉन्फिडेंट रहे, 82 से 85 वाले होपफुल रहे और 80 से 82 वाले अलर्ट रहे, क्योंकि DSSS बीच लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है। तो क्या आपके नंबर 85 से कम हैं? क्या इसका मतलब ये है कि आपका चयन नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। 85 से नीचे वाले भी इस गेम में हैं, बस उम्मीद, तैयारी और सही जानकारी के साथ डटे रहिए। और आगे देखिए कैसे आपका सिलेक्शन होता ही आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं, भरोसा रखो। क्योंकि DSSSB में बाजी आखिरी मोड़ पर पलटती है। अब तक की पूरी संभावना और विश्लेषण पूरी तरह से घोषित परिणामों पर आधारित है। यह मानकर किया गया है कि सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी के सभी उम्मीदवार समय पर ई डॉसियर भरेंगे, दस्तावेजों में कोई त्रुटि नहीं होगी और किसी प्रकार का अनुपालन में चूक नहीं होगी। साथ ही यह भी अनुमान है कि जिन आरक्षित श्रेणियों ओबीसी, SC, ST, EWS, PWDBD के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनकी रैंक भी 90 से अधिक अंकों के भीतर है। इस आधार पर चयन की वर्तमान संभावनाएं तैयार की गई है। हालांकि वास्तविक स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब ई डोसियर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसमें कुछ उम्मीदवार अनुपस्थित रह सकते हैं या दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण बाहर हो सकते हैं। इसलिए कट ऑफ और चयन की अंतिम स्थिति में थोड़ा ऊपर नीचे होना संभावित है। 90 से अधिक मार्क्स, बहुत बढ़िया। तुसी ऑलमोस्ट फाइनल लिस्ट इच्छो हो। 85 മുതൽ 90 വരെ സോളിഡ് ഹോപ്പ് और चांस है। 8க்கு 22 മുതൽ 85 बॉर्डर लाइन जरूर,
पर अभी भी सिलेक्शन पॉसिबल है तो पॉजिटिविटी बना के रखो। फाइनल मेरिट तक कुछ भी हो सकता है और अच्छा ही होगा। DSSSB ਦੇ ਸਕੋਰ ਰੇਂਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾएं ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਅੰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ। ਸਿਆਸਾ ਪੋਇਸ਼ਰ ਸੇ 90 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਰਮਡ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋ। ਇਹ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 100% ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਮਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 85 ਦੀ ਸਿਆਸਾ ਪੋਇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ, ਜੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ 100% ਚਾਂਸ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੋ। 82.5 ਟੂ 85 ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਪਰ 80-90% ਤੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ 'ਚ 90% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 81.5 ਟੂ 82.5 ਮਾਰਕਸ, ਜਨਰਲ ਕਟ ਆਫ 'ਚ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ 60-70% ਤੱਕ ਹੀ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਅਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ 80% ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ। 81 से नीचे मेन सिलेक्शन चे बहुत कम चांस, 30% से भी नीचे, पर रेयर या विशेष हालत चे कुछ मिरेकल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो भी सकते हैं अप टू 50%। आपके कितने मार्क्स है कमेंट करो और क्या रैंक बन रही है। क्या 85 की 88 मार्क्स वालों का सिलेक्शन पॉसिबल है? चलिए पता लगाते हैं। द आंसर इज कि उत्तर है यस, एब्सोल्यूटली। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। क्या 83 ਦੀ 85 ਵਾਲੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਤੇ हैं? ਲੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਕੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਯੈਸ। ਸਟੇ ਹੋਪਫੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਸਕੇਟ ਹੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਲੈਸ ਦੇਨ 80 ਮਾर्क्स, थोड़ी पॉजिटिविटी, थोड़ा पेशेंस ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਪਲਟ सकती है। दरवाजा खुला है। स्थिति 1, अगर सारे 317 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स अपना ई डॉसियर सही टाइम पे भरते हैं तो सारे ही पूरी तरह योग्य निकलने ने कट ऑफ जा सकती है 86.5 तक, मतलब कंपटीशन तेज है। 2, अगर लगभग 10% उम्मीदवार अनुपस्थित रहें या अयोग्य निकलें, CTET ना होना, पंजाबी क्वालिफिकेशन दी कमी या दस्तावेज दी गड़बड़, कट ऑफ थोड़ी खटकर आ सकती है 85। 86 सेफ जोन अभी भी एक्टिव है। 3, अगर 15% उम्मीदवार या तो ई डॉसियर नहीं भर पाते या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाने ने, CTET पंजाबी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा, कट ऑफ आ सकती है 83-84 तक। ਹੁਣ ਹਬ ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ। 4, ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 10-20 ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਟ ਆਫ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 81.5 ਤਾਂ 83 ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵਲੇ ਸਕੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 5, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ, ਅਗਰ RTI ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕਾਰਨ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, कट ऑफ जा सकती है 81 नीचे। एक केस रेयर है, पर DSSSB अज तक सब कुछ होया है। याद रखो, DSSSB आखिरी मोड़ तक चौंका सकता है। स्पेशल और करो चैनल ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਟ ਆਫ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 82.5 ਤੇ 86 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਰੇਂਜ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ 'ਚੋਂ, ਬਸ ਫਾਈਨਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਭਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਗੇਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਟ ਆਫ 81-82.5 ਤੱਕ ਵੀ ਲੁੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ 81 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਅਲਰਟ ਵੀ ਰਹੋ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ DSSSB हर बार कुछ ना कुछ शौक जरूर देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में दिए गए सभी सवालों और जवाबों की PDF फाइल आपको हमारे ग्रुप में बिल्कुल फ्री में शेयर कर दी जाएगी। ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जॉय।